अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के कासवी की कामयाब तकमील के बाद हुआ इजलास। काबीना सब कमेटी के चेयरमैन उत्तम कुमार रेड्डी ने की क़ियादत। IAS अफसरान, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। तेलंगाना ने कास्ट सर्वे करवाते हुए मुल्क के लिए कायम की है गैर मामूली मिसाल। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। BRS दौर में कराए गए सर्वे में BC तबकात की तादाद 51% थी, अब घटकर 46 क्यों हो गई। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से किया सवाल। दिल्ली असम्बली इलेक्शन के लिए आज तमाम 70 असम्बली सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने भी हक़ राय दही से किया इस्तिफ़ादा। और अमरीका गाज़ा का इंतज़ाम संभालेगा और तामीर नौ भी करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। काबीना सब कमेटी के चेयरमैन और रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक इजलास हुआ, जिसमें IAS अफसरान, रियासती वज़रा और अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। कास्ट सर्वे की कामयाब तकमील और उसके बाद किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, MLC आमिर अली खान और दीगर कई कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना ने कास्ट सर्वे करवाते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात की आबादी और उनकी सही सूरत हाल का इससे पता चलाने में कामयाबी मिली। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने कास्ट का जामे सर्वे करवाया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तेलंगाना गवर्नमेंट led by Congress party have taken initiative to go for caste survey. It's first of its kind in the country, going for a detailed scientific mode caste survey, wherein many facts have been established in regard to BC population, in regard to SC/ST population, in regard to minority population. It is just like a complete X-ray of the body, as said by Mr. Rahul Gandhi. Now the opposition is making noise about this survey. I straightaway asked BRS, what have they done in the last 10 years? They have taken a program of Sakala Kula survey and could not table the report. That is their love and affection towards the BC community. And now those people who have reduced BC reservation from 32%, 33% to 22% have no right to talk about BCs. Congress government led by Revanth Reddy has done a detailed scientific survey, and all the citizens of Telangana who believe in democracy and who believe that the backward classes upliftment have to appraise and support this initiative. As long as SC bifurcation also, immediately after the Supreme Court's decision, Telangana government initiated the process. Now the process has been completed in a span of 75 years. So both the initiatives are in the interest of these sections who are waiting for these results for the last 50-60 years. I applaud the government of Telangana. उधर दूसरी जानिब साबिक़ा रियासती वज़ीर और BRS लीडर KTR ने दावा किया कि BRS के दौरे हुकूमत में कराए गए सर्वे के मौके पर साल 2014 में BC का फ़ीसद 51 था और अब कांग्रेस हुकूमत ने जो कास्ट सर्वे करवाया उसमें BC तबकात की तादाद 46% ही बताई गई। आखिर उसकी क्या वजूहात है? ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అధ్యక్ష సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో పాల్గొన్న కుటుంబాల సంఖ్య 1,03,00,000 కుటుంబాల అధ్యక్ష 1,03,95,000 మొత్తం పాల్గొన్న ప్రజలు 3,68,00,000 3,68,00,000 జరిగింది ఒక్క రోజులో 24 గంటల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటిని ఎన్యూమరేట్ చేసి అత్యద్భుతంగా చేసినాం. మేము చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా ఎంత మిస్లీడింగ్ గా మాట్లాడుతున్నారంటే అధ్యక్ష వారు అంటారు, అధ్యక్ష ఇంతకు మించిన టాపిక్ లేదు అధ్యక్ష, వారు అడిగిన ప్రశ్నకు తప్పకుండా మా ప్రభుత్వం గతంలో చేసిన పని గురించి
వారు అనుమానాలు తలెత్తే విధంగా ఏదైతే మాట్లాడినారో దాని గురించి చెప్పాలి అధ్యక్ష. వారు అంటారు అధ్యక్ష బీసీల సంఖ్య అందులో ఎంత అని. ఎస్, ఆనాడు బీసీల సంఖ్య సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం 1,85,61,856, 51%. 51% బీసీలు ప్లస్ అది కాకుండా ముస్లిం సామాజిక వర్గంలో ఉండే బీసీలను కూడా కలుపుకుంటే 10%. మొత్తం ఆనాడు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం రాష్ట్రంలో బీసీల సంఖ్య 61%. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము మాట్లాడడం కాదు అధ్యక్ష, ఇక్కడ మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పినారు. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ చెప్తున్నాడు బయట, దీన్ని తగలబెట్టండి, ఇంకా గలీజ్గా మాట్లాడింది నా మాట అన్న, తగలబెట్టండి అన్నాడు. దీన్ని తగలబెట్టండి ఈ నివేదికను తప్పుల తడక అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ చెప్తున్నాడు, మేం కాదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బలహీన వర్గాల సంఘాలు చెప్తున్నాయి. ఏమని చెప్తున్నాయి అధ్యక్ష? సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో 1,85,61,000 ఉన్న బీసీలు ఎట్లా 1,64,64,00,000 తగ్గినరు, 51% 46% ఎట్లయిందని అడుగుతున్నారు. శంకరన్న కూడా అదే అడిగింది కదా అధ్యక్ష, తప్పేం అడిగింది? तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिला में BRS कायदीन की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। नरसापुर MLA सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और सीनियर BRS कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी की उन्होंने मजम्मत की। संगारेड्डी जिला में GHMC डंपिंग यार्ड के क़याम की मुखालिफत करने वाले मुकामी लोगों और किसानों की तायद करने वाले BRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। हंगामाराई को देखते हुए पुलिस ने चंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर BRS कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। आज बेंगलुरु में कौमी सतह के हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। तेलंगाना से रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने नुमाइंदगी करते हुए इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर उन्हें मसरत हुई है। इस मौके पर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और केरला के वज़रा के साथ वाइस चांसलर्स के तकर्री और आला तालीमी इदारों को चलाने के लिए UGC के मुसवदा ज़ाबतों पर तबादले ख्याल करने का मुझे एहसास हासिल हुआ है। तेलंगाना के NGOs और चंद समाजी इदारों पर मुश्तमिल ग्रुप ने वे टू फ्रीडम की लॉन्चिंग तकरीब में आज शिरकत की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के इस्तेहसाल के खिलाफ कोशिशों समेत मुख्तलिफ मैदानों में खदमात के हवाले से मनसूबे तैयार करते हुए काम का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। ఒక రోజు కాకపోతే ఒక రోజు అవుతాము అన్నది కూడా ఒక గ్యారంటీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చోర్లు ఎవరు ఇంటి మీద పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ ఫిజికల్ లేబర్ అవసరం లేదు. ఒక కొంచెం టెక్నికల్ ఇది ఉంటే, నాలెడ్జ్ ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు, సైబర్ ఫ్రాడ్ అవుతుంది. అదొకటి. ఇంకొకటి మనం సెక్స్ ట్రేడ్ గురించి ఇసిరో గారు మాట్లాడారు. ఆ ప్రయాణం మొదలెడుతున్నాము. ఆ ప్రయాణానికి ఈరోజు మన SLS సెక్రటరీ గారు, ఉమా మేడము అండ్ ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణ సారు అండ్ డాక్టర్ కృష్ణన్ గారు, టెక్నికల్ పార్ట్నర్ గా అభిషేక్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ ఐ థింక్ IJM-లో అభిషేక్ గారిని కూడా నేను వేదిక పైన ఆహ్వానిస్తున్నాను. అభిషేక్ గారు కొంచెం పైన వస్తారా? రేష్మ ఏమో 2 సంవత్సరాలుగా వెట్టి చాకరీలో ఉంటూ మన మధ్య ఉన్నారు. తన పిల్లల్ని ముగ్గుల్ని చూసుకుంటూ ఇప్పుడు ఏ పని అయినా దొరికితే అక్కడికి వెళ్ళి మంచిగా పని చేసుకుంటూ సొసైటీలో చూసుకుంటున్నారు. అలానే మన మధ్య రాజు గారు ఉన్నారు. తను మహబూబ్ నగర్ లో ప్రెసెంట్ ఉంటున్నారు. సంఘంలో ఒక నాయకుడిగా ముందుకు వెళ్తూ ఎంతో పని చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. మల్లయ్య గారు ఉప సర్పంచ్ గా పనిచేస్తూ సంఘంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. దయచేసి అందరూ చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేద్దాం. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అసలు అని చెప్పి మీరు పరిచయం చేసుకోండి. మీకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బర్మల మల్లయ్య, మాది అమరగిరి గ్రామం, కొల్లాపూర్ మండలం, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. నాకు 3 పిల్లలు, 2 అంగన్వాడికి వెళ్తారు. నేను ఇప్పుడు మాజీ ఉప సర్పంచ్గా గ్రామంలో పనిచేస్తాను. థ్యాంక్ యూ మల్లయ్య. రేష్మ గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దవాళ్ళు వచ్చిన అందరికీ ఒక నమస్కారం. నా పేరు రేష్మ బేగం. నేను మేసి పని చేస్తున్నా. కరాత్కి వెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చినాను. 3 పిల్లలను చదివించుకుంటా ఒక ఆయన ఉన్నాను. మా హస్బెండ్ లేడు, అయినా హస్బెండ్ చదివించుకుంటా భర్తగా ఉంటున్నాను. పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రాజా అండి. మేము మహబూబ్నగర్లో ఇప్పుడు అయితే పని చేసుకుంటా మాలాగా వలసగా పోకుండా చాలామందిని ఆపుతూ వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాను.
शहर हैदराबाद खासतौर पर नामबली असम्बली हल्के में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने सियासत टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि खुद चीफ मिनिस्टर और GHMC हुकाम ने इसे तस्लीम किया है। अकबर ओवैसी के बयान और रहमत रेड्डी के ताज़ा मौक़िफ़ के हवाले से भी फिरोज़ खान ने अहम बयान दिया। आइए देखते हैं उनके तासुरात। तेलंगाना के अंदर और खुसूसी हैदराबाद के अंदर बोकस वोट, डबल वोट, घरा नहीं है वहाँ पे वोट, छोटा सरका घर है 100 वोट, डेथ वोट, NRI वोट, ये तो स्टोरी आम खास हो गई। और कल स्टैंप लग गया मुख्यमंत्री जो बोले हैं, और कैटेगोरिकली 59,000 डबल वोट्स है बोल के आप बोल दिए असेंबली में, और बोले GHMC कमिश्नर के पास ये कंप्लेंट है विद प्रूफ। और हमारे ऑपोजिट रेवंत रेड्डी साहब के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन साहब ये बात बोलते कि हाँ, नामपल्ली की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास आई और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन वापस एक रिपोर्ट लिखी कि हम डबल वोट हटा दिए। मैं अकबरुद्दीन की इत्तला के लिए बताऊं कि अभी मैं आपको प्रूफ दूंगा। मुरली, अभी वो प्रूफ निकाले थे ना। अब्दुल रहीम, आज की डेट, आज की डेट, बूथ किशन नगर 1148 सीरियल नंबर, सेम अब्दुल रहीम, किशन नगर, सीरियल नंबर 1149, डबल वोट। अब्दुल रशीद, बूथ जेबाबा, नंबर 615, सेम अब्दुल रशीद, बूथ जेबाबा 614, डबल वोट। अब्दुल मुखीद, बूथ जेबाबा, नंबर 422, सेम अब्दुल मुखीद, सेम जेबाबा 545, डबल वोट। अब्दुल जाफर, अहमद नगर 3838, सेम अब्दुल जाफर, अहमद नगर 389। क्या है ये? सो ये डबल वोट। शहर हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में एक तामीराती मुकाम पर सेलार के लिए खुदवाई के दौरान एक दीवार गिर गई। हादसे के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब खुदवाई के दौरान एक दीवार मुनहदिम हो गई और इसके मलबे के नीचे 4 अफराद दब गए। इनमें से 3 की मौत मौके पर ही वाक़ई हुई। इनके साथ एक और शख्स मौजूद था जिसका पाँव टूट गया और इसे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक ज़िला खम्मम से बताया गया है। इस हादसे में ज़ख्मी शख्स का इलाज जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ अलकापुर में पैदल जाने वाली एक खातून के गले से चेन उड़ा ली गई। खातून की चीखों पुकार सुनकर लोग घरों से निकले, लेकिन उस वक्त तक चेन उड़ाने वाला राह फरार इख्तियार कर चुका था। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। CCTV कैमरे में यह पूरा मंजर रिकॉर्ड हुआ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिकेटर त्रिशा गुंगाड़ी के लिए ₹1 करोड़ का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से त्रिशा ने मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से भरपूर अंदाज में सताइश की।
और बात करेंगे मौसम के हवाले से। रियासत तेलंगाना में सर्दी का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा नोट किया जा रहा है। हालिया दिनों में दोपहर के बाद आज़म तरीन दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज़ कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा है। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने पेशकशी की कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत मामूल से तकरीबन 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है। इस दौरान मौसम खुश रहेगा, ताहम चंद अजला में सुबह के औकात में कोहर छाए रहने का इम्कान है। मौसम की इस तब्दीली के सबब शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि गर्मी के असरात और बदलते मौसम के किसी भी किस्म के नुकसानदा असरात से वो महफूज रह सकें। और बात करेंगे कौमी सतह के और आलमी ख़बरों के हवाले से। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आज तमाम 70 असम्बली सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो गई। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के वज़ीर आला आशी, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंधु समेत कई अहम शख्सियात ने वोट डाला। सदर मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अहाते में कायम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल स्कूल के पोलिंग बूथ पर अपना वोट इस्तेमाल किया। दिल्ली के मुख्तलिफ हल्कों से 699 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत वोटिंग मशीनों में मुहरबंद हो गई। दिल्ली इलेक्शन का नतीजा 8 फरवरी को जारी किया जाएगा। इलेक्शन के फौरी बाद आज एग्जिट पोल जारी होना शुरू हुए हैं। ताहाल 5 से 6 एग्जिट पोल सामने आए, जिसमें आप पार्टी के इख्तिदार के कम इम्कानात हैं, जबकि बीजेपी को इख्तिदार मिलने के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी आज हक़ राय दही से इस्तीफ़ा किया और दिल्ली असम्बली इलेक्शन के मौके पर अपना वोट का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने पटना में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आज हिंदुस्तान में इक़्तिदार के ढांचे में दलितों और पसमानदा तबक़ात की शिरकत न के बराबर है। उन्होंने कहा कि दलितों को नुमाइंदगी तो दी जाती है, लेकिन हकीकी इख्तियारात से उन्हें महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी नुमाइंदगी बेमाने हो जाती है। उन्होंने तेलंगाना में किए गए कास्ट सर्वे की कामयाब तकमील का हवाला दिया और कहा कि तेलंगाना ने ज़ात पात का सर्वे करवाते हुए एक मिसाल पेश की है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 साल थी। इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 4 फरवरी को पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में हुआ। मौलाना शाह करीम अल हुसैन इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। बताया गया कि उनके इंतकाल के वक्त अरकान ख़ानदान उनके पास ही मौजूद थे। अमरीकी दौरे पर पहुंचे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाज़ा का इंतज़ाम संभालेगा और हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गाज़ा की तरक्की चाहते हैं। गाज़ा बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जिसे तामीर करना और वहाँ हज़ारों मुलाजिमतें पैदा करना शानदार होगा। ट्रंप ने इसका कोई तफसील नहीं बताई कि वो गज़ा पर कंट्रोल के अपने मनसूबे पर किस तरह अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने अमरीकी फ़ौज गज़ा भेजने के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग में शामिल मिस्र, उर्दून और सऊदी अरब ने पहले ही ट्रंप की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया है। हमास ने भी ट्रंप के इस ख्याल की सख्ती के साथ मुखालिफत की है। Really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again.
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नाम नहाज ज़्यादा दबाव की मुहिम को बहाल करते हुए एक एग्जीक्यूटिव कार्रवाई की है जिसका मकसद उसे जौहरी हथियार से रोकना है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये कदम हिचकिचाते हुए उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि इक़दाम ईरान के साथ मुज़ाकराती मुआहदे की तरफ ले जाएगा। इस दौरान वो एक दस्तावेज़ पर दस्तखत करते देखेंगे जिसका असल मवाद और फॉर्मेट अभी वाइट हाउस ने आम नहीं किया है। It's very tough on Iran. It's what we had before. We would have never had the problem. You would have never had October 7th. We would have never had the problem had the election gone a different way, which it should have. But this one, I think, more than made up for it. I think we're doing things and it shows that more than made up for it. Much more historic. The Iran situation, hopefully, I'm going to sign it, but hopefully we're not going to have to use it very much. We will see whether or not we can arrange or work out a deal with Iran and everybody can live together, and maybe that's possible and maybe it's not possible. So I'm signing this and I'm unhappy to do it, but I really have not so much choice because we have to be strong and firm, and I hope that it's not going to have to be used in any great measure at all. It'd be great if we could have a Middle East and maybe a world at total peace. Right now you don't have that. When I left, you had peace all over the world, and now you have the world is blowing up. As you know, Bibi is coming in to see me later. Others are coming in to see me. We'll see what we can do. But I'm signing this, and hopefully it will be a document which won't be very important, will hardly have to be used. So what kind of deal would you be prepared to Well, make we're going to with see. I mean, we're going to see. They cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Mr. President, are you going to engage in conversations with your counterpart in Iran? I would. Do you want to block the sale of Iranian oil to other nations? Well, we have the right to do that, and that's what I did before, and they had no money. They wouldn't have had the money for Hamas or Hezbollah or anybody else. It could have been solved, this thing. It just, if things went the way they should have, this would have been over long ago. और अब आखिर में हेडलाइंस पढ़ा लेंगे एक और नजर। तेलंगाना के कासवी की कामयाब तकमील के बाद हुआ इजलास। काबीना सब कमेटी के चेयरमैन उत्तम कुमार रेड्डी ने की क़यादत। IAS अफसरान, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। तेलंगाना ने कास्ट सर्वे करवाते हुए मुल्क के लिए कायम की है गैर मामूली मिसाल। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। BRS दौर में कराए गए सर्वे में BC तबकात की तादाद 51% थी, अब घटकर 46 क्यों हो गई? साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से किया सवाल। दिल्ली असम्बली इलेक्शन के लिए आज तमाम 70 असम्बली सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने भी हक़ राय दही से किया इस्तिफ़ादा। और अमेरिका गाज़ा का इंतज़ाम संभालेगा और तामीर नौ भी करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।